ED lawyer ASG SV Raju has said that Kejriwal needs to be confronted with an individual. He has added that Kejriwal's statements were recorded, but he gave evasive replies. Raju has added that Kejriwal might have to be confronted with some individuals who've been summoned from Goa. So clearly, Shubhrana, the ASG, while arguing for further custody of Arvind Kejriwal, has said that he has given evasive replies to the ED so far, and he perhaps needs to be confronted with an individual who could be got from Goa soon. Yes, of course, it is a big breaking coming in because they have said that the individuals from Goa, basically Aam Aadmi Party Goa President Amit Palekar have arrived at ED office in Goa, and they have said that from the Goa who are coming in, Arvind Kejriwal needs to be sit in front of them and the questions should be asked in front of them, and then the statement would be recorded because ASG Raju have been saying from ED side that Arvind Kejriwal have been constantly not giving the appropriate answers of the questions he has been asked, and for this a 7-day custody is being demanded by the ED because they are saying that Arvind Kejriwal has not answered, and a data needs to be examined and recorded for this Delhi liquor scams case and money laundering case. And the Aam Aadmi Party and the ED have constantly saying that Aam Aadmi Party have the profits game from money laundering case and liquor policy. They have favored it for the Goa elections, and due to which Amit Palekar, which is the Aam Aadmi Party president from Goa, he would be questioned, and they would be, and Arvind Kejriwal and the Goa who are alleged, and the Aam Aadmi Party candidates who were alleged from Goa, they would be sit in front of each other, and now they would be cross-questioned, and then ED would further take any action. But still now the breaking have been coming in that 7 days have been ED demanding for more custody. Yes, back to you. Javed Hussain also is with us live from the ED headquarters. Javed, also the ED, of course, arguing that Arvind Kejriwal has been evasive so far. Is that what your ED sources are telling you? That he's not been replying to their queries so far? What has been their line of questioning? देखिए, कई सवाल ऐसे हैं जिसमें ईडी को आज जो ईडी ने अपने अभी कोर्ट में ईडी की तरफ से रखा गया है, जो उनके वकील है, कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी तरीके का कोई जवाब दे रहे हैं। कोई भी सवाल अगर उनसे पूछा जा रहा है तो सीधा जवाब दे रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं। जिस तरीके से गोवा इलेक्शन का जो जिक्र हो रहा है इस पूरे लिकर पॉलिसी स्कैम मामले में, और 100 करोड़ में से 45 करोड़ हवाले के जरिए कुछ कैश पैसे गए, इसमें अमित और रामा राव जो 2 लोग हैं जिनके बारे में आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये हमारे उम्मीदवार थे, 2 और लोग हैं, मतलब कुल 4 लोगों को ईडी ने नोटिस दिया है यहाँ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, जो लीकर पॉलिसी से लेकर जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि इसमें हवाला का जिक्र है। मैं आपको बता दूं कि 7 जुलाई 2023 को राघव मंगूटा, जो कि मंगूटा सिसपल्ली के बेटे हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था। उस स्टेटमेंट रिकॉर्ड में उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया साउथ लॉबी की तरफ से, कैसे 100 करोड़ रुपए का इंतजाम करने की बात कही गई। के कविता से मुलाकात हुई, उनके पिता की मुलाकात हुई, अभिषेक बोनीपल्ली और बुच्ची बाबू जो कि के कविता के सीईओ और करीबी थे, किस तरीके से कहा गया कि इनसे आप मिलिए और जो पैसा है वो आप इनको दीजिए। 25 करोड़ रुपए कैश, जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है राघव मंगूटा का, ईडी की जांच में ये जिक्र है कि 25 करोड़ रुपए कैश दिया गया था। उसके बाद जो बाकी पैसे वो अरेंजमेंट के लिए कहा गया था। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इस पूरे पॉलिसी को और पैसे को लेकर राघव मंगूटा के पिता और के कविता के बीच में, जो ईडी की जांच में राघव मंगूटा ने अपने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में बताया ईडी को। इसके अलावा विजय नायर वो कड़ी है जो अरविंद केजरीवाल से समीर महेंद्रू की बात कराई थी। ये पूरा जो एक चेन है, ये साउथ लॉबी है जो लिकर पॉलिसी में इंटरेस्टेड थे, और किस तरीके से लिकर पॉलिसी को लेकर जो आम आदमी पार्टी पे जो ये एलिगेशन है और ये जो स्टेटमेंट पूरी तरीके से ईडी के सामने है, तमाम आरोप जो लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, इसमें कई कड़ी है। राघव मंगूटा सिरपल्ली जो कि इनके पिता हैं, अभिषेक बोनीपल्ली, बुच्ची बाबू, इसके अलावा के कविता, सी अरविंद, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये एक बहुत लंबी कड़ी। और अब जिस तरीके से गोवा
के दो लोगों का जिक्र हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी ने ईडी के नोटिस के बाद ये कहा है कि सिर्फ मेरे ये दोनों जो है उम्मीदवार हैं, बाकी जो दो और शख्स हैं उनका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पूरा एक पैसों का मनी ट्रेल हुआ था और हवाला का जिक्र है के जरिए पैसा गया, उसके बाद एक मोटा रकम जो है वो कैश वहां तक पहुंचा। ईडी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में एक पूरा ट्रेल बना रखा है, उसने ड्रॉ के जरिए भी किस किस तरीके से पैसे गए, कैसे कैसे मीटिंग हुई। अरविंद केजरीवाल के जो ऑफिस में जो उनका रेजिडेंस है वहां पे मीटिंग बुलाई गई, ड्राफ्टिंग में चेंज करने को कहा गया। विजय नायर लगातार इस लॉबी को, आम आदमी पार्टी को ये रिप्रेजेंट कर रहा था, राजीव पिल्लई जो कि वहां से इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पूरी बीच का एक चेन को कोऑर्डिनेट करने की किया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल की समीर महिंदू से ऐप के जरिए बात हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सूत्रों के हवाले से कि अरविंद केजरीवाल ने कहा विजय नायर पे भरोसा करने के लिए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, सीएम रहते भर में अरविंद केजरीवाल को किस पूरे स्कैम का पता क्यों नहीं चला, अगर ये पॉलिसी वाकई अच्छी थी तो फिर इसको वापस क्यों विड्रॉल करना पड़ा। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं। उसके बाद फोन का जिक्र है, जो मनीष सिसोदिया ने जो फोन को इस्तेमाल कर रहे थे, उनके सी अरविंद जो उनके सचिव थे, उनका जो फोन था, उस फोन को लेकर कई चैट्स हैं, कुछ फोन मिसिंग हैं मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के वक्त से ही, और इसके अलावा कई और ऐसे बड़े फेस हैं। इसके बाद के कविता के पास से के करीबियों से डायरी मिली थी, जो कि ईडी की जांच में पहले से ही मेंशन है। उस डायरी में उन लोगों का नाम लिखा जाता था जिन लोगों को पैसे दिया गया, यानी कि जो खुद से लिखा गया, तो उसमें भी कई बड़े नाम हैं। और इसके अलावा कई बड़े चेहरे जो अब इस वक्त जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त रिमांड में है, के कविता से पूछताछ करने के बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष जो ये के कविता की को बैठाकर भी कन्फ्रंट कराया गया। अभी कई ऐसे लोग और हैं गोवा को छोड़कर, जो लोग आज जो ईडी ने जिनको नोटिस दिया, इनके अलावा कई और ऐसे लोग हैं इस लीकर पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल के सामने और ईडी के सवालों का जवाब देना है। ये जो पूरा मनी ट्रेल है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है लीकर स्कैम को लेकर, इसका जो जवाब है, जो जवाब है वो ईडी अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि उनको इस सारे स्कैम के बारे में पता ना हो। और दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस पे मीटिंग हुई, कई बार मुलाकात हुई और विजय नायर का इंटरेक्शन हुआ। तो ऐसे कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे फैक्ट्स हैं, कई ऐसे एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस की बात करें, सीडीआर की बात करें, तो ईडी पूरी तरीके से तैयार है। और ईडी अपने इसी पॉइंट्स को लेकर एक बार फिर बेस बनाकर आज कोर्ट में जो है केसी राजू और जोएब हुसैन जो कि उनके वकील हैं, वो अपनी बात रखेंगे और आगे और रिमांड की बात करेंगे, क्योंकि ईडी का कहना है कि अभी अरविंद केजरीवाल की रिमांड ज़रूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं और उनका भी वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए अभी वो दिल्ली के सीएम, और जिस तरीके से लगातार बात आ रही है ये भी केस हो सकता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.